Greetings to all of you wonderful and lovely folks out there. आप सभी दर्शकों का शुद्ध देसी रेडियो के शानदार फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अनिरुद्ध एंडी एंड विथ मी आई हैव माय को-होस्ट एंड माय पार्टनर शालिनी। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, लय न टूटे जिंदगी के साज की, जिंदगी कल भी बेहतरीन थी, आज भी बेहतरीन है। तो पिछले कई हफ्तों से हम लोग आपके लिए हर संडे को एक कुछ ऐसी हस्ती लेके आते हैं जिनके साथ में हम गुफ्तगू करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आज भी हम वैसे ही करने वाले हैं। हमारे साथ में एक महान हस्ती है। He is one of the very first music composers who introduced Indian audience to rock and pop music with the aim and intent to give audiences the taste of varied musical flavors. He has been successful in keeping his originality intact with, musical jingles, film music, or modern music. Some of the work that he did with the jingles, jingles that he composed, one of them I remember is the Taste the Thunder, Thumbs Up, and then, you also know that Dood, full glass Dood, then there was Santur. So that's the work that he's done with jingles. Then later on, he did remix with Asha Ji's album, Rahul and I, and he happened to, remix songs that are uh, these the songs that O Jane Jana and that kind of songs. And then he collaborated with another famous singer, Hariharan Saab, and the duo actually came up with Colonial Cousins. And their debut album was chartbuster at that time. And he also happens to be, the duo happens to be the first act on MTV Unplugged, and they have been given the award of Best Indian Viewers Choice on MTV, and also Billboard Choice of Awards. So, dosto, we have with us the privilege and honor to welcome the one and only rock sensation, pop guru, remix guru, Leslie Lewis. So Leslie, we are so glad to have you with us. Thank you very much for joining our Facebook Live session. Thank you, Shalini. Thank you, Andy. It's just lovely to be with you guys in America right now. एक टाइम था ना, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है. But it's amazing. Thank you very much. very well done. मतलब अनिरुद्ध, आपने तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, और लेस्ली सर आपको जस्ट यहाँ पे है, हम we are really honored to have here, और it's a bliss in a way we are connected via internet, virtual video conferencing, so wonderful. तो जब आपके साथ हैं, बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं, तो मैं आपसे कुछ बात शुरू करती हूँ कि एंडी ने जैसे कि शुरुआत की, कैसे आपने रीमिक्स की बातें करी हैं, रीमिक्स के यू आर द गुरु, यू आर द क्रिएटर ऑफ रीमिक्स बॉलीवुड. I will quote unquote blame that on Mr. R.D. Burman. Because I'll tell you क्यों हुआ ये. मैं लंदन में था और कॉलोनियल कजिन्स का हम एल्बम उस टाइम रिकॉर्ड कर रहे थे. तो आशा जी, मैं कुछ सेल्फ्रिजेस में कुछ शॉपिंग कर रहा था और आशा जी वहां मिल गई. तो आशा जी ने कहा, अरे तुम यहाँ मेरा एल्बम करना है. तो आई वाज सो एक्साइटेड विद कॉलोनियल कजिन्स. सो आई सेड, अभी तो मैं कुछ और कर रहा हूँ. शी सेड, नहीं, एंड आर.डी. बर्मन हैड जस्ट पास्ड अवे. पंचमदा, वी कॉल हिम पंचमदा as a pet name. So R.D. Burman had just passed away, and she said कि उनको उनके जो पुराने गाने थे उनको नई पीढ़ी के लिए फिर से करना था, लेकिन उनको तुम्हारे साथ करना था. I said, "Whoa, bro, he could have done it with anybody in the world." And मैं तो पहले से fan हूँ. My father has been one of the biggest choreographers in Bollywood. So Sholay, Sargam, Dawn, Kheke Pan, Daphne Wale, Yahoo, Evening in Paris, Chai Koi Mujhe Jangli, all that. So I had grown up with R.D. Burman as a kid. जब कंपोज करते थे, डैडी के साथ जाता था, चलो चुपचाप बैठो या डिस्टर्ब मत करो, हम लोग काम कर रहे हैं. So I've always been a fan. Or plus R.D. Burman always liked to have more Western music, guitar. So I was more
you know, I loved his music. And जब आशा जी ने कहा कि उनको करना था उनके पुराने गाने तुम्हारे साथ for the next generation, I said, wow, then I have to do it. तो मेरे लिए तो it became you know something very special कि एक तो आशा जी खुद गा रहे और पूरे आर.डी. बर्मन के गाने मुझे एक न्यू बिकॉज आई हैड टू टेक आशा जी टू द नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन वो पुराना जनरेशन उनको भूलना नहीं, तो कैसे करें? सो आई थिंक जो रीमिक्स ये पिया तू अब तो आजा, ओ मेरे सोना रे, वो जब शुरू हुए वो इट्स गॉट अ लॉट टू डू विद आर.डी. बर्मन वांटिंग टू डू इट विद मी. अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे, बट आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी एंड वेरी प्रिविलेज्ड. I mean, उसके साथ साथ आपने बहुत सारे के साथ किया, वो यारों वाला गाना मेरा बहुत फेवरेट है. अब लोग बात करें तो. लेकिन उस टाइम के साथ नहीं किया, के का यंग आर्टिस्ट था, उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था. आप तो यारों दोस्ती पल वो है, वो एल्बम है जब मैंने के को एज अ वेरी यंग आर्टिस्ट फर्स्ट टाइम आई इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी यंग सिंगर कॉल्ड के. बाद में के बन गया एंड ही इज एन अमेजिंग सिंगर. तो आपको पता है how many songs he sang, but not just how many songs, he's a very soulful singer, बहुत अच्छा गाता है, और वो पहले ही मुझे अच्छा लगा उसके बारे में, तो इसलिए I did यारो दोस्ती और पल for this young singer now known as KK. और आपका वो भी था सुनीता राव के साथ परी हूँ मैं, उसके बारे में. हाँ वही वैसे ही बात है, परी हूँ मैं भी मैंने कंपोज किया था एंड देन सुनीता राव brought it, और उसके बाद वो तो बहुत पॉपुलर हो गया, और फिर फाल्गुनी पाठक ने लेके उसको पूरा ऐसे डांडिया में घुमाया. तो इन गुजराती डांडिया में नो डांडिया इज कंप्लीट विदाउट परी हूँ मैं. तो आई कॉल दैट सॉन्ग परी हूँ मैं, आई कॉल इट द नेशनल एंथम ऑफ गुजरात. तो ये तो हम आपके रिमिक्स की जर्नी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में और जाएं, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि आपके डैड शुरू से इस लाइन में है, म्यूजिक की फील्ड में है, तो आपकी जर्नी. वो डांस के फील्ड में थे, कोरियोग्राफर थे. आपका जो संगीत के प्रति रुचि और आपको गाने में इतना इंटरेस्ट है, म्यूजिक बोलने में, तो ये शुरू कहाँ से हुआ? जस्ट बाय गोइंग टू द मूवीज और यू हैड सम? एक तो मेरे डैड वाज आल्सो वेरी म्यूजिकल, मतलब वो तबला बजाते थे, तो घर पे मतलब एक क्लासिकल जोन में थे. तो अल्लाह रखा जी जो जाकिर हुसैन की डैडी, हम पास में ही रहते थे. When I was young, Zakir bhai used to carry me when I was a small young kid. So एक फैमिली म्यूजिकल फैमिली जैसा वो माहौल था. तो बट माय डैड वाज अ डांसर, और लेकिन उनको तबला में बहुत शौक था, बजाते थे, और ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इलेक्ट्रिक गिटार, सिंथेसाइजर, उनको शौक था. ही यूज्ड टू कीप बाइंग इट, आई यूज्ड टू प्ले इट. तो मुझे मेरा हाथ थोड़ा उस पर बैठ गया. बट स्कूल में लोग कहने लगे कि चलो अभी एनुअल डे है, आपको डांस करना है, वेयर लुंगी, पुट ब्लैक बूट पॉलिश फेस पे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, क्यों ये राज के बैठे हो, उसके लिए यू हैव टू डांस. आई सेड आई डोंट वांट टू डांस, बट आई वाज पुट इन अ पोजीशन कि मुझे डांस करना है, बिकॉज माय फादर इज अ डांसर और कोरियोग्राफर. तो उसके बाद जब लोग कहने, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग विद हिम फॉर रिकॉर्डिंग्स, थोड़ा बड़ा होने लगा, तो सब बोले अच्छा तुम ही डांसर बनने वाले हो ना डैडी जैसा. ऐसे मुझे डांसर नहीं बनना है. सो इन वांटिंग टू डू समथिंग एल्स मैंने म्यूजिक ले लिया. आई वाज ऑलवेज फाउंड ऑफ म्यूजिक, तो मैंने वो लाइन पकड़ लिया, डांस पे नहीं गया. आई लव डांस, आई अंडरस्टैंड डांस, यू नो, एंड हेलेन आंटी फॉर मी. क्यों बचपन से गोदी में उठा के उस टाइम से शी स्टिल हेलेन आंटी टू मी. तो आई हैव ग्रोन अप विद डांस, बट आई लव म्यूजिक, तो इसलिए मैंने डांस पे नहीं गया, म्यूजिक पे गया. अच्छा, तो आपका जब भी हम लोग पिक्चर देखते हैं, गिटार एंड मिस्टर लेस्ली इज काइंड ऑफ इनसेपरेबल, एंड हाँ, मतलब एक इमेज हो गया है, और ऊपर से पेट भी इतना बड़ा है ना, तो गिटार अच्छा बचाता है, तो मेरा स्टाइल है. अच्छा, नहीं, आई लव द गिटार, तो गिटार हैज बीन पार्ट ऑफ मी. okay. So Les, I can call you Les, right? Yeah, Les, of course. Okay, all right. So Les,
you have done work with all these different artists, as Shalini was saying, Sunita Rao, Alisha Chinoy. You have also partnered, collaborated with Hariharan Saab. All Yeah. those are kind of past projects for you. What are the Yeah. new projects that are coming up, or anything that is happening in that area, or any new jingles that you have done recently that we are not aware or you are still working on? Maybe that's something. I just did a new song क्योंकि कोविड ये लॉकडाउन है हम लोग सब घर पे बैठे सो Uh-huh. आई एम द mascot for IIMUN, Indian International Movement to Unite Nations. Okay. And this is only 17-year-old kids, huh? And I have been their mascot. 10 साल से मैं उनका mascot हूँ. 10 साल से मैं 70 एक adult देखा ही नहीं मैं वहां कोई adult है नहीं. It's only run by 17-year-old kids from 10 years. अभी जो 18 साल का जो ओनर था जिसने फाउंडर था जिसने स्टार्ट किया ऋषभ शाह today he is 28 so that's why he is 28 but he was 18 and everybody under him was 17 तो उनके लिए for the last 10 years I have performed in all their events at least 5-6 events every year all over the country और recently because lockdown हुआ था तो ऋषभ had called me up and said sir हमारे आयमन के लिए आप कुछ एक गाना बना लो ना it will be a nice uplifting thing so all the people that are associated to Ayman जैसे कि शान है श्रेया घोषाल बेनी दयाल भूमि त्रिवेदी शिल्पा राव एंड ऑल्सो काव्या जोन्स जो मेरे साथ मेरी को वोकलिस्ट है सो ऑल ऑफ अस गॉट टुगेदर एंड वी क्रिएटेड अ सॉन्ग कॉल्ड एक इंडिया तो वो अगर आप ऑनलाइन जाएंगे एक इंडिया करके गाना है बप्पी जी ने भी गाया है सॉरी आई मिस बप्पी ने भी गाया तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग तो वो ऐसे लॉकडाउन में ही यहाँ घर बैठे जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं मैंने कंपोज किया वहीं इंस्ट्रूमेंट्स बजाए सबको ट्रैक भेजे गा लिया यहीं मिक्स करके वी रिलीज्ड इट फ्रॉम हियर सो that is the current situation लेकिन आगे जाके to answer your question truly I have already lived 4 avatars as a music person I started जब पहले मैंने start किया I was a sessions studio guitarist, a serious guitar player. That was my job. I left that और वो छोड़ के मैंने फिर jingle शुरू किए. So I started composing jingles. तो वहाँ mango, fruity, fresh and juicy ये सब आप गाने सुनते हैं वो सब मैंने करते वो सब compose हो गए. तो I became after jingles I started doing pop music. और पॉप म्यूजिक में आपने गाने सुने परी हूँ मैं जाना समझा करो यारो दोस्ती पल का इजहारा जो भी है दैट वाज ऑल एज अ पॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर और उसके बाद वी डिसाइडेड कि चलो लेट्स फॉर्म अ बैंड या लेट्स गो एंड प्ले इन फ्रंट ऑफ पीपल कि उस टाइम आर्टिस्ट ज्यादा करके लाइव शो नहीं करते तो हरियाणा और मैं हमने मिलकर एक बैंड बनाया कलोनियल कजिन्स और सो आई बिकेम अ बैंड सो एज अ गिटार प्लेयर jingle composer, pop music producer and as a band. Wow. 4 अवतार ऑलरेडी हो गए कलोनियल कजिन्स भी हो गया अभी तो 5th वन क्यों मैं तो चुप नहीं बैठने वाला तो आगे जाके क्या होने वाला है इज यू आर गोइंग टू सी द सिंगर परफॉर्मर कॉल्ड लेस्ली लुइस जो क्योंकि जब मैं शोज करता हूँ ना तो एक मैं कभी कभी ऑडियंस को एक डायलॉग देता हूँ और 5 गाने अनरिलीज बैक टू बैक उनके लिए परफॉर्म करता हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव योर ओन ऑडियंस appreciate unreleased songs लेकिन मैंने 4-5 बार करके बीटा टेस्ट करके देखा इट्स फैंटास्टिक आई टेल देम बहुत पहले एक आदमी आया था तो वो कह रहा था सर मेरा एल्बम करना है सर मैं बिजी हूँ आशा जी का एल्बम कर रहा हूँ यंग लाइक और के उसका एल्बम कर रहा हूँ करो सर प्लीज मेरा एल्बम कीजिए मुझे गाना है सर ठीक है ठीक करता हूँ अभी बहुत साल बाद वो फिर से आ गया बोले सर इतने साल से मैं कह रहा हूँ कि एल्बम करना है और आप मेरे लिए मेरा एज भी हो रहा है सर मुझे गाना प्लीज तो ऐसे सही बात है सो आई स्टार्टेड कंपोजिंग फॉर हिम एंड ही इज अ वेरी आई टोल्ड द ऑडियंस कि ही इज अ वेरी गुड सिंगर वेरी नाइस परफॉर्मर अगर आपको चांस मिले कि उसके शो में जाना प्लीज गो चेक हिम आउट हिज नेम इज लेस्ली लुइस और बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग लेस्ली लुइस लेस्ली विल परफॉर्म द नेक्स्ट 5 सॉन्ग्स फॉर यू और वो 5 गाने अनरिलीज्ड जब होता है कि वो जो साउंड जैसे एक आप कलर में देखते सडनली ब्लैक एंड व्हाइट हो गया साउंड ही चेंज हो जाता है 5 गाने के लिए एंड आफ्टर दैट आई कम बैक एंड से थैंक यू लेस्ली अब उसके बाद जानन समझा करो यारो दोस्ती चालू होता है बैक टू द ओल्ड लेस्ली
तो आई थिंक देयर इज अ ग्रेट फ्यूचर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सा म्यूजिक जो है 26 एज तक के लिए बनाते हैं हम, 18 to 26. So people like you and older people who are 50, 60, उनको नया गाना मिलता ही नहीं. अब देखो, there is no new music created for older people past 30. So मेरा कहना है कि music is for everyone. Why, it is for the 18-year-old and it's also for the 40-year-old and the 50. लेकिन 40-year-old, 30-year-old को क्या मिलता है? बेस्ट ऑफ किशोर कुमार, बेस्ट ऑफ देवानंद. तो उनको ऑप्शंस नहीं मिलते क्योंकि ऑप्शंस दिया नहीं जाता है. तो मैंने कहा कि मैं ऐसे गाने बनाऊंगा जो मुझे पता है कि मम्मी डैडी को भी अच्छा लगे, and the kids will also rock because I've been performing for 17-year-olds for the last 10 years, so I know what they love. तो एक मिक्स भी हो सकता है, जो मैं नहीं बोलता कि वही गाना मम्मी को और वही गाना बच्चों को अच्छा लगे, but there will be lots of new music coming out for all my old fans who have been waiting, and hopefully inshallah it will happen. बिल्कुल बिल्कुल. जब हम इतनी सारे गानों की बात कर रहे हैं तो आप कुछ 2 लाइनें एक्सक्लूसिव हमारे रेडियो लिसनर्स के लिए गुनगुना देंगे प्लीज. गुनगुनाऊं या गिटार पे गाऊं? गिटार will be very good हाँ, actually. नहीं, मैं तो मेरा लुक ऑड हो जाएगा ना विदाउट गिटार. Okay, one second. Okay, sure. Let me try it. I was looking at your guitar actually, that was next to you, so. Hey, yeah. सुनाई दे रहा है? Yes. Yes. So I will dedicate this song to all the people on your channel today on Facebook Live. Thank you very much for joining, and this one's for you guys. Wow.
so wonderful to hear you. थोड़ा सा क्योंकि इतना दूर से है और हम कर रहे हैं वर्चुअली, तो थोड़ा सा हमें क्लियर नहीं आ रहा था, but then ओहो, absolutely ओके। हाँ, वो तो we thank you, we blame that on the internet. yes, it's Right, right. हम on internet, because otherwise in real person it's amazing. It's No, such a hopefully one day I'll come to Nashville and आपको वहाँ live perform करें. Why बिल्कुल not? सर। बहुत ही जल्दी वो भी It's all this is over, उसके बाद definitely हम लोग वो भी करेंगे। मगर it was such a bliss, I'm telling you. The thank you. words and the way you were singing. You know that is Mehboob. Mehboob is such a great writer. वही उन्होंने ही लिखे तू ही रे अच्छा, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. So same writers. That's Mehboob, and you know he's a fabulous writer. तो कितने beautiful lyrics है और केके ने भी कैसा अच्छा गाया है. You know, at the end of the day it's become the anthem of the next generation, and that is amazing. अरे दोस्ती के लिए अगर हम कुछ भी गाना टाइप करते तो सबसे पहले यारो ये लिख के आता है। तो अजीब बात है कि दोस्ती का जो गाना है ना, जो एंथम बनता है अपने इंडिया में, दोनों गाना मेरे घर में ही है. पहला गाना मेरे डैड का था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, शोले का. दैट वाज दोस्ती वाला एंथम जो अपने घर में था, मेरे डैड का था. अब दूसरा दोस्ती वाला एंथम मेरा हो गया. So I don't know. some coincidence, but it's beautiful. All the absolutely. song writes to your house. My house, yes. Absolutely. So, Leslie, you know, now the music scene in India, right? There has been, you know, from the time you started composing music till now, there's been, you know, a lot of changes. There's a digital technology that has come in, and, you know, there is a lot of beautification that happens on songs. So, uski puri originality is lost, kind of, you know, it's, Right. you know, what is real and what is not real. So, making a difference is very difficult. So what is that scene and how it can be made a little better, or how do you see this going forward actually? एक तो there is a system, जैसे हमारे पहले सिस्टम में था बॉलीवुड, which was run by the Bollywood producers and directors, और कौन सा गाना आपको कब आएगा वो ही डिसाइड करते थे. आपका ऑप्शन नहीं था. जो गाना सुनने मिलता था, जो सबसे अच्छा लगा, वो नंबर 1 हुआ, और बाकी के 2, 3, 4. अभी it is the digital system and the streaming systems that have changed कि अभी आपको एल्बम चाहिए या सीडी चाहिए या कैसेट चाहिए तो आपको मिलेगा नहीं. तो डिफॉल्ट कर दिया है. आपको ऑनलाइन ही जाके सुनना है तो आपको उन पे सब्सक्राइब करना है. एंड द पीपल हु आर रनिंग डिजिटल आर आल्सो रनिंग द मूवीज. तो उसमें क्या होता है कि मूवीज, डिजिटल और इंडिपेंडेंट म्यूजिक सब एक ही घर से आता है, एक ही अम्ब्रेला के नीचे है. तो उसमें nobody has the option कि कौन सा म्यूजिक आएगा. They decide कि आगे वाला म्यूजिक क्या रहेगा, कैसा होगा, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है. तो जितना दिखाएंगे उतना बिकेगा. So I'm not saying it's a good thing or a bad thing. I'm not pointing fingers at anyone. I'm just saying the system is under one umbrella. तो उसमें क्या होता है कि you have no control. तो आप जितना भी अच्छा म्यूजिक करें जो लोगों को अच्छा लगे, अगर वो लोगों तक पहुंचे नहीं तो it's of no use. Right. Right. And we were lucky कि we had MTV, Channel V at those days कि जो specifically did not do Bollywood. उनका एजेंडा था कि हम नॉन बॉलीवुड करें, इसीलिए इंडी पॉप शुरू हुआ, सब हुआ. उसके बाद वो यू नो दे आल्सो लॉस्ट द ट्रैक्शन. तो क्या है, तो उसके बाद देयर इज बीन नो इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन जो पहले था. 90s का जो पॉप सीन था वो बिखर गया, थोड़ा सा बिखर गया. बट मुझे नहीं लगता कि there are a lot of beautiful artists, there are lots of young talent, you know, all over the world. I mean, Indians all over the world are so talented, but in India alone there is so much talent, and उनमें से मैं भी हूँ, new artist अबाऊंगा. तो so I have to compete with that, no? कि you're starting all over again. So this week I will become a senior citizen. So I turned 60. So on 20th of June. 20th of June, yes. Yeah. So my point is becoming a senior citizen and starting my musical career all over again. It's a stress,
because it's all very different, but it's so exciting कि कर सकते हो and you can do it. And I have the song, so I know कि content है, अब उसको कैसे लेके जाए. Right. बहुत Okay. ही बढ़िया. So one thing that I wanted to check, since you said about how what music is played and all that, तो पहले के ज़माने में there used to be a lot of pop and rock music चलता था, but all of a sudden it kind of faded down. It kind of is that the reason that you are saying, because it's all under one umbrella and now you don't get the choice of हाँ, listening to what you आप देख लो ना, पहले की जो बॉलीवुड गाने थे अलग थे, बाद में देन हिप हॉप एंड रैप, जो कल्चरल शिफ्ट है वर्ल्ड में, तो इंडिया में भी बॉलीवुड से ही आया है. सो यू कैन सी दैट. आई मीन, और ऑल्सो एक मेलोडिक ट्रेंड, मेलोडी का एक रास्ता होता है, एक मैप होता है. तो फॉर एग्जांपल, याद नहीं अब कुछ, याद अब आ गया वापस, पूरा दायरा घूम घूम के इट कम्स हियर. बट टुडे इट इज वेरी सिंपल, हम्मा 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 हे हम्मा, बस हो गया. Yeah. So everybody has no time. Everybody wants to be, they want to be entertained in a very short time. They Right. want to be entertained. That is very clear. And they want to be entertained in a very short time. कि if I'm पहले introduction में मेरा interest नहीं आया तो change, because I can change. So the technology is allowing me to शालिनी गाओ दो ना, एक लाइन गाए, अरे shift to hand है. बस पहले लाइन में इंटरेस्ट ही नहीं. हाँ, तो वैसा है, सुनने के लिए टाइम नहीं है. So everybody in the younger generation looks कि आपके likes कितने हैं. And they look at the numbers. Oh, इतने likes है, then he must be good, then she must be good. वो गाने पे भी ये, हाँ, वो they just go by the numbers कि इतने likes, but the likes can be bought, likes can be not genuine. वो होता है. So my point is, so that's another business of music also happening कि likes बढ़ाओ, ये करो, because that's becoming part of the sales and marketing space. gimmick, yeah. But we can't fight it, and I don't think ये नया टेक्निक है, नया टेक्नोलॉजी है, उसको embrace करके how do we learn it well and use it well. I बिल्कुल. think you said it absolutely right. मतलब embrace it rather than fight it. I think that's probably the best thing. Yes, super. Yes. जब आपकी बात सुन रहे हैं और कैसे बीच में जिक्र भी आ रहा था कि कैसे when there is a gap or then we are trying to learn new things and then stress comes and all these things. सुबह सुबह आज मेरी नींद खुली थी ये सैड न्यूज़ सुन के सुशांत सिंह के बारे में. I know, I heard about Sushant. कर लिया, उन्होंने सुसाइड किया, और हमें फेसबुक पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि now we should talk about him here and we should have your views on that. I mean, I don't know, just want to just bring this thing out here because I mean we don't know कि किसी के दिमाग में क्या कब चल रहा होता है. Maybe it is because of competition है या stress है, we don't know anything. Just we say कि okay, the help is out there. जैसे आपने अभी कहा maybe फाइन प्रिंट पे कहा ना, maybe it is complete, we don't know. So I feel कि sometimes he's passed away. I know Sushant because I've met him. He's a lovely guy. He's I know he loved my music, but he's a lovely person. He's a great. अभी ये ऐसा हुआ, I'm myself kind of amazed. But क्यों हुआ? There is nobody who's going to give you the answer. तो हम लोग अपना आंसर बना के whatever sounds interesting. See, it's very voyeuristic. We all want to. And I'm saying कि अभी उनका देहांत हो गया है, let him just go peacefully rather than start a whole thing of something that nobody knows. जैसे आपने कहा maybe. Yeah, but it was definitely a sad news to wake up to. Very sad. They said yes. Very sad. Inside because Jyoti can just miss me. Okay, let's steer the subject and when we talk अगर हमारे aspiring कोई musicians बनना चाहते हैं, singers बनना चाहते हैं, especially अगर वो US में रहते हैं और बॉलीवुड में जाके कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय होगी, क्या सलाह आप उनको देना चाहेंगे? अभी पोस्ट कोविड क्या सलाह है किसी को पता नहीं. Because even in India पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है इज एट द लोएस्ट रंग, और वो लिफ्ट अप होने में भी लास्ट होगा.
businesses, industry सब शुरू होंगे, उसके बाद entertainment industry will pick up. तो all the other people who are here are also asking the same question कि अब आगे क्या होने वाला है. तो मैं कोई राय दूं को कि यूएसए से आके यहाँ एक टाइम था, अलग बात है, बट अब पोस्ट कोविड जो भी बोलूंगा झूठ होगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है एक्चुअली कि मैं भी, मेरे गाने भी मैं कैसे करूंगा. क्या आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये सब हिंदी इंग्लिश में बोल रहा हूँ. आपको गाना सुनना है, आप जब गाना सुनेंगे, आप रिएक्ट करेंगे, तो म्यूजिक इज गोइंग टू टॉक टू यू इन इट्स ओन लैंग्वेज. लेकिन वो करने के लिए कैसे करूं, दैट्स द प्रॉब्लम. हाउ डू आई गेट द म्यूजिक टू टॉक टू यू? यू हैव टू लिसन टू इट. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. तो मैं किसी को एडवाइस अब कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, एक्सेप्ट कि अपना, अगर आपको म्यूजिक फिर भी करना है, फॉलो इट विथ योर हार्ट, और जो भी आए, आई मीन इट्स गोइंग टू बी अ अपहिल टास्क फॉर एवरीबॉडी. मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया में. तो अगर हम अज्यूम करते हैं, अगर कि सपोज ये जैसे कि हम सुन भी रहे हैं 1-2 साल तक ऐसे ही, वी हैव टू लिव विद दिस, इज न्यू नॉर्मल एंड वी हैव टू लिव विद कोविड. यस. लगता है क्या कि ऐसे कि जो हमारी टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का काफी ज्यादा रोल रहने वाला है, और मे बी विल कम अप विद अ न्यू ट्रेंड कि हम जैसे कि गाने बना रहे हैं जस्ट बाय सिटिंग हियर ऑन इंटरनेट और किसी भी के थ्रू, एंड देन जस्ट वी आर गेटिंग मोर एंड मोर व्यूज एंड spreading on social media. Maybe that would be a new normal. I think ये जब वैक्सीन आएगा सब नॉर्मल हो जाएगा. न्यू नॉर्मल उतना तक रहेगा. उस एंड वी ह्यूमन बीइंग्स, वी आर अबाउट पीपल. तो ठीक है, अभी कोविड है, सोशल डिस्टेंसिंग है, बट आफ्टर सम टाइम म्यूजिक हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड. और सुनना अलग बात है. आप टीवी पे देखे अलग, नहीं तो मैं डीवीडी नहीं देखूं बेस्ट आर्टिस्ट का, मैं क्यों कॉन्सर्ट में जाऊं? जो सबसे अच्छे आर्टिस्ट उनके घर पे बैठ के डीवीडी देखो. बट दैट इज नॉट इनफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स. एक्सपीरियंस ऑफ म्यूजिक इज द थिंग. इसीलिए लाइव होना, कि आप कुछ भी आप एक डब्बे पे भी बजाओ तो एक फील आता है. तो लाइव म्यूजिक विल कम बैक, क्योंकि लोग जो है एट सम पॉइंट विल बिकम नॉर्मल अगेन. ठीक है, न्यू नॉर्मल होगा. कोई जैसे कि आपने कहा कि हम गाना बना सकते हैं इंटरनेट पे बैठ के, ये अभी थोड़ा आदत पड़ गया. जैसे हम भी बात कर रहे हैं आपसे इंटरनेट की तरफ, तो नेक्स्ट टाइम यू माइट से लेजी एक गाना करना है हमको यूएस में, यहाँ कंपोज कर लो, यहाँ से इंडिया, मे बी दैट विल स्टार्ट कुछ नया ट्रेंड. लेकिन म्यूजिक और उसका जो एक्सपीरियंस है मुझे नहीं लगता जाएगा, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स नीड टू एक्सपीरियंस म्यूजिक. एब्सोल्युटली. मतलब मुझे भी यही लग रहा है कि मे बी फॉर टाइम बीइंग वी कैन डू हियर एंड देयर लिटिल बिट एक्सपेरिमेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन फॉर लॉन्ग रन इट इज नॉट गोना बी. आप जस्ट इमेजिन सिटिंग इन जगजीत जी's महफिल ऑनलाइन. आप क्यों ऐसे अभी? Because it will not bring the experience. Yes. True. And I think as you are saying, right, वो virtual concert is different and going to a live concert is completely different. थोड़ी देर के लिए होगा virtual concert ये वो, but it's got its limitation, because just like a movie, आप जब घर पे देखते हो ना, नेटफ्लिक्स देखते हो, फिर यू कैन पॉज इट, यू कैन गो, अरे 1 मिनट में थोड़ा चाय पी के आता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ. और अगर नहीं रुक रहा है, यू कैन स्टिल वॉक आउट ऑफ द रूम एंड कम बैक, यू गेट डे लाइट बैक टू योर रूम. थिएटर में इट्स कंप्लीटली डार्क, यू आर इन दैट स्पेस, यू आर इन द मूवी टिल द मूवी इज फिनिश्ड. Right. और सेम चीज विद लाइव एंटरटेनमेंट. जब कॉन्सर्ट में आते हो, यू आर इन द कॉन्सर्ट टिल द कॉन्सर्ट इज ओवर. उसके बाद आप कुछ भी बात करो, बोल, यू डिस्कस अबाउट इट, दैट्स डिफरेंट, बट एक्सपीरियंस यू गोइंग टू डिस्कस. तो जैसे मूवी थिएटर में होता है, वैसे लाइव परफॉर्मेंस भी स्टेज पे होना और लोगों के साथ होना जरूरी है, सबके लिए, फॉर द आर्टिस्ट एंड फॉर द ऑडियंस आल्सो. तो हो जाएगा. That's an interesting thing, because we are still trying to adapt to that, because summer here, it is summer time here right now, and everyone looks towards all these concerts that are coming up. 2020 is kind of going to be a wash altogether, no concerts at all. Exactly what Shalini just said, कि 1-2 साल के बाद, हाँ, ये 1-2 साल के बाद ये सब it will become, अभी के लिए न्यू नॉर्मल होगा. उसके बाद थोड़ा जो हमारा नॉर्मल है वो थोड़ा सा नॉर्मल सी पे आ जाएगा. हाँ, then okay. All right.
We had So towards the end है Andy. हम yes. लोग एक हमारे लोगों के साथ करते हैं. We do this rapid fire question round. तो कुछ वो क्वेश्चन. मैं बहुत I'm very bad at all that. I'm telling you now only. I'm 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 quite शुद्ध देसी, but उसके अलावा कुछ नहीं हूँ. खाने पीने में ठीक हूँ. अच्छा, वो खाने पीने के ही क्वेश्चन होंगे. चलो पूछो. No right, no wrong. It's just for fun, easy ones, right? We will try. If it's easy for you, I'll try. Okay. So let's start. The first question is, if you could trade your lives with anyone for a day, who would that be and why? Leslie Lewis. Because he's going to become Leslie Lewis now, and I want to be that. Wonderful. Okay. Next one. So when you get up in the morning, what is the first thing that you think of? What is the first breakfast item that you think of? I've stopped eating so much ताकि गिटार उठा दूं तो अच्छा लगे. But no, when I wake up, because we are in lockdown, तो 23rd March से मैं यहीं हूँ. 23rd April से I've been stuck here every day. हम बाहर नहीं जा सकते अंदर. So I have to cook my own food, I have to wash my own vessels, I have to wash the floor, I have to wash my clothes, and I have to create music and have it, interviews with you. तो वो करने में बहुत important चीज क्या है कि खाना ready होना चाहिए. So the first thing I get up in the morning is I run into the kitchen and I start cooking. So that is my general routine कि खाना पहले बनना चाहिए, उसके बाद में सब देखते हैं. अच्छा, वो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. खाना नहीं तो गाना नहीं ना. क्या बात है. So, okay, so let's talk about movies. What would be your favorite quote or a dance? Movies, I'm not a good movie person. मैं ज्यादा कुछ बॉलीवुड में मूवीज ज्यादा देखता नहीं है. ना मैं बॉलीवुड के गाने ज्यादा सुनता हूँ. I know them जब सुनता हूँ तो हाँ ये वो हाँ वो, but I don't really know them because I'm very sorry, I'm sounding very self-immersed, but आपको पता नहीं how involved I am with Leslie Lewis. You know, I was coming back from Shankar Mahadevan's 50th birthday. तो वो आउट ऑफ बॉम्बे उनका एक हाउस है, फार्म हाउस. तो वहां से घर आ रहा था बैक टू बॉम्बे. I played 35 songs of Leslie Lewis के नए गाने back to back, and और बहुत से बाकी है. I ended at 35 पे I reached because I was only listening to Leslie Lewis. So कब people ask me what do you listen to, I say I listen to my own music क्योंकि आप नहीं सुन सकते. You don't have that luxury of listening to those songs. Only I have them, and they're so beautiful that I want to hear them. Not because मैंने किया है, मुझे अच्छा लगता है. That's why I listen to it. So movies and all, मुझे actually I'm not very good with all this. Okay, let's change the question then. What would be your favorite song of your own song? You know, That's a great one. Song. Yeah. That's a great question. I Now would, you're gonna. yeah, I would say Indian Rain. Colonial Cousins का एक गाना है Indian Rain. okay. लेकिन Indian Rain कभी भी आपको टाइम मिलेगा प्लीज सुनिएगा. It's an amazing song. Actually, that's the song we wanted to make the first video. लेकिन record label decided कि सानी थप्पा, which was also fantastic. लेकिन आप वीडियोस की बात करोगे तो I think Krishna is probably one of my favorite songs. Right after this, listen that one. All right. To our next one. So describe Leslie Lewis in 3 words. You asking me to describe him? Yes. Yes. Okay. Okay. Yourself in 3 words. Okay. Foodie. Foodie. Okay. Complete foodie. Chef. चलिए this is the same topic ना. चलो एक है foodie, एक है mad composer, थोड़ा हो, and third one overweight. What is that? Oh. If I were you, I would tell you one thing about you is that you are the most
stylish composer I have seen. The way you present Thank you. yourself, you dress, the accessorize yourself. I just totally love that thing about you. Thank you. I love it. तो I feel कि just like my music, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये म्यूजिक मेरे लिए करूँ, आपको भी अच्छा लगता है, मैं जो पहनता हूँ मुझे अच्छा लगता है, वो आपको भी चाहिए. थैंक यू वेरी मच. Very nice. वो क्वेश्चन आपके लिए अगला ये होने वाला है कि where was that the one worst place where you were ever stuck? The worst place I was ever stuck. तो हम 31st नाइट उड़ीसा में एक 31st नाइट का शो कर रहे थे, एंड फर्स्ट न्यू ईयर के फर्स्ट को हम वापस बॉम्बे आ रहे थे. तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे हमारा फ्लाइट 7 AM का था. तो इट इज ऑलरेडी अ 5-6 आवर ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट. तो हम लोग 2 बजे निकल गए थे. फुल नाइट 7 बजे तक पहुंचे एयरपोर्ट, मतलब गॉट टू द फ्लाइट हैज बीन डिलेड. वो फ्लाइट डिले होते होते कुछ रात को 8-9-10 बजे निकला. We was just whole day he was stuck in the airport. So it was probably one of the worst times because कुछ कर ही नहीं सकते हैं, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे अटके हुए बस, and happy new year करके. तो everybody said कि अरे हम लोग अटके हुए न्यू ईयर के दिन, मतलब एयरपोर्ट पे है, तो हम लोग we will be flying the whole year round. Good side. positive light में देखना है तो. Very nice. All right. Next one is, what is that one thing that you own that you wish you didn't own? That I own that I wish I didn't own. Something that you have, kind of buyer's remorse, so to say. Probably my actual name. Actual name? Because it's spelled Leslie. Okay. Leslie, Leslie. तो स्कूल में जब रहता था स्टूडेंट Leslie, तो Li आता तो ऐसा लगता झूठा है. Oh. Leslie. तो इसीलिए you will find that I used to never be happy with my name, and I have tried over the years to keep changing it ताकि that झूठा वाला आदमी doesn't come to me Leslie. But ठीक है, मैं जो हूँ सो. Okay, so what I was gonna ask you कि आपके वॉलेट में कोई एक इंटरेस्टिंग चीज अगर रहती है तो उसके बारे में बताइए. मनी तो नहीं रहता, और आजकल कोविड के बाद पता नहीं मनी भी नहीं रहेगा, लेकिन let me show you what is in my What is that? Oh, guitar pick. Yes, ये मेरे आप वॉलेट में आपको मिलेगा, जो दूसरे ज्यादा लोग के वॉलेट में नहीं मिलेगा. हो सके पैसा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा. Super. So, who's your favorite superhero? Quincy Jones. Quincy Jones? Okay, wow. Quincy Jones, who created Michael Jackson, he's the legend of America as far as music is concerned. So I have always followed him as a young artist कि मतलब बनना है तो चांस नहीं है बनने का, वो बहुत आगे है, लेकिन एक follow that path. So I was lucky कि 1991 में I went to the North Sea Jazz Festival, और वहाँ से I went to Switzerland and I got to meet him, which was you're meeting Quincy Jones. So for me it's most amazing, and yeah, he's probably the most person who's also influenced a lot of my work. Okay. Wow. Okay. Musically, जो बोलते हैं ना ऑनलाइन गुरु. Right. बस सुनते रहो और सीखो. Very nice, very nice. अच्छा, तो आपको पता है ना फॉर्चून कुकीज होते हैं जिसमें से कि खोलो तो फॉर्चून. लेकिन उसके पहले तो चाइनीज खाना पड़ता ना, उसके बाद ही खोलना पड़ता. फॉर्चून कुक खाने के बाद आते हैं, खाने वाला क्वेश्चन अगला है. तो जो फॉर्चून कुकीज, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है ना वो, तो फॉर्चून निकलता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं ना कि क्या निकला है. लेकिन व्हाट वुड यू वांट, अगर आपके पास वो होता कि मेरे उस फॉर्चून कुकी के फॉर्चून पेपर पे क्या फॉर्चून लिखा हो?
you are going to make it again. Very nice. Wow. Okay. I'm telling you, I am so driven कि लेस्ली लुइस the artist, singer, composer, performer जो आपने देखा नहीं है, वो होपफुली आप तक पहुंचेगा एक दिन. उसके गाने और लाइव परफॉर्मेंस पहुंचना जरूरी है. देन आई विल बी सेटिस्फाइड कि मैंने कुछ जो मुझे चाहिए था मैंने किया, बिकॉज सबके लिए किया है मैंने म्यूजिक, लेस्ली लुइस के लिए नहीं किया है. सो आई फील कि इट्स टाइम दैट आई स्पेंड टाइम फॉर. मैं और यंग आर्टिस्ट को भी प्रमोट कर रहा हूँ. दैट इज माय को वोकलिस्ट काव्या जोन्स जो मेरे साथ गाती है. उसका बट शी इज माय स्टूडेंट, तो अभी वो आई एम हर मेंटोर, तो उसका भी एक गाना आएगा. किसी और यंग आर्टिस्ट का भी. आई एम आउट टू प्रमोट यंग टैलेंट ऑल्सो, लेकिन आई एम ऑल्सो यंग टैलेंट नाउ इन टूडेज टाइम. तो मुझे वैसा देखना पड़ेगा कि आई एम वो गद्दी पे नहीं बैठा हूं मैं. आई एम ऑन द स्ट्रीट एंड आई एम रॉकिंग विद देम एंड विद द नेक्स्ट जनरेशन, एंड होपफुली मम्मी डैडी को भी अच्छा लगे. बिल्कुल बिल्कुल. We are so much looking forward to that. So now Thank we are you. coming. Now we are coming to your favorite question about food. Okay. What is one food that you wouldn't want to give up? Wouldn't want to give up. I think fish, seafood. Fish, seafood. Wow, Seafood. wow. Okay, very nice. Yeah, Very nice. I wouldn't want to give that up. I mean, I don't want to give up anything. और मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग सब खाना है. लिमिट में खाओ, सब खाओ. But yeah, if I had to give it all up, then I would like to keep seafood on my side. Wow. We will look All right. at social media posts जहाँ पे आप सारा नया नया अच्छा अच्छा खाना बना के पोस्ट करते हैं. हाँ, तो मैं पोस्ट करता हूँ कि खुद बनाओ खुद खाओ. That's what is hashtag. तो वही है ना, खुद बना. Because मुझे ऑप्शन, मैं बोला ना, every morning I go into the kitchen. एक दिन पाया बनता है, एक दिन अटलांटिक सामन बनता है, एक दिन कुछ चिकन रोस्ट बनता है. बट व्हाटएवर आई फील, मैंने क्या सोचा कि अगर मैं लॉकडाउन में लॉक्ड डाउन हूँ, तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि आई एम स्टेइंग इन अ 5-star होटल, और मैं डेली रूम से बोलता हूँ आज मुझे ये खाना है, सेंड मी दिस. देन आई गो एंड क्विकली मेक इट एंड आई ब्रिंग इट फॉर माय सेल्फ एंड आई ईट इट. तो आई शेयर दैट विद द ऑडियंस की कोविड के टाइम में और क्या बात करना है. मतलब दिस इज द रियल थिंग दैट्स हैपनिंग. सबको पता है और कुछ हो ही नहीं रहा है, सब घर पे बैठे. तो ये बताओ, तो जो रियल हो रहा है वो बताओ. बिल्कुल, सब घर में खाना बना रहे हैं तो सब खा रहे हैं. Very nice. Wow. बहाने हमारा और आपका मिलना भी हुआ, बात भी हुई यहाँ पे. तो मैं तो बोलूंगी, मैं तो कोविड को थैंक्स बोल रही हूँ कि इसी बहाने हमारा मिलना हो रहा है, बात हो रही है. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अभी इसके बाद बहुत बुरा होगा. कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. इट इज अप टू यू हाउ यू लुक एट इट. और आप और सबको, पूरे वर्ल्ड को एक ग्राउंड अप से शुरू करना है. तो अगर आप वो उस नजरिए से नहीं देखेंगे ना, so you are going to get stuck. True. You have Very to, and true. also young musicians, like you asked me, all these young musicians जो होंगे on your channel अभी, don't give it up. हाँ, लेकिन पैसा चेस करोगे तो फिर मुश्किल है. हाँ, आर्ट को चेस कर लो ऑटोमेटिकली. My dad used to tell me, तुम्हारा आर्ट तुम्हारा बैंक बैलेंस है. So if you develop your art, your bank balance will happen. Right. Very true, actually. In today's day, it is very true. But back in the days when we were growing up, I think it was either you have to be an engineer or a doctor, and that's pretty much what But So now I think that- things have changed. हाँ, because it is more lucrative, ना. उस टाइम जब मेरा दोस्त, my friend was getting married to this girl friend of his, तो अकेला था, वो बोला चल मेरे साथ मेरे in-laws के पास. So he took me there. So her father asked me, अच्छा, so what do you do? And I was playing, that time I was a musician, I was playing at the Oberoi, Cafe Royal करके restaurant है Oberoi में, Okay. In the basement, and I was a musician there every night. I used to play. This is 1980. Oh, wow. So his father asked me, so what do you do? So I said, I'm in the band, I play the guitar. अच्छा, oh very nice. But what do you do? I said, no, I play the, 2-3 बार हुआ. Then he returned and said, अच्छा, बैंड वाला. You know what I'm saying? So it was not accepted कि म्यूजिक में आपका करियर बन सकता है. True. वो
हम लोगों ने अपने लिए किया है. I think this generation will have to do it for themselves if they want to survive. Absolutely, absolutely. बहुत ही बढ़िया. आपके साथ बात करते इतना मजा आ रहा है कि टाइम इतना बीत गया हमें पता ही नहीं चल रहा है. It's really really wonderful having you here, talking to us, talking to our viewers and listeners, and just want to say thank you so much. Stay safe, keep on cooking healthy food, and just post करते रहे आप, हम देखते रहे और हम भी इंस्पायर होते रहे कि हम आपके जैसे कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, कितने एक्टिव हो सकते हैं. Lot of people are saying सर पोस्ट मत कर लो, every time देख देख के हमारे मुंह में पानी आ रहा है, हमको नहीं मिलता है. So ऐसे खुद बनाओ खुद खाओ. It's so true, right? Right. Okay. So thank you Andy, thank you Shalini. So yes, thank you very much. And I think, we are going to do something special for you. June 20th is your birthday. You are a singer composer. We are not singers nor composers, but we are going to do our best to sing, birthday song for you. Okay, wow. How about that? Okay, Why? let's do that on Absolutely. count of 3. Happy, ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Leslie. Happy birthday to you. So that's from all of us Thank you. here. Thank शालिनी, you so एंडी, much. शुद्ध देसी रेडियो के सभी लिसनर की तरफ से आपको बर्थडे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. Thank you very much. It's So, lovely being with you. thank you so much for coming here, and we will stay in touch. And Done. Thank you. our listener for joining us, and Yes. thank you. Yeah, just say hello from me to all of them. Leslie saying hello to all of you, and he loves you so much, and wait for his new music. Okay. Bye bye, guys. All right. Bye. Thank you.